Hi guys, a very warm welcome to everyone in this today's session. Hope you all are in an aesthetic mind and in a very good mood because the weather is also very pleasantful. So what we are going to do today? Today we are going to start our next poem, our next poetry for Rhapsody. Okay, today we are going to see the 13 poetry for your Rhapsody, that is Beethoven. Yep, we are going to start Rhapsody now because we have already done our Macbeth till Act 4. Okay, only Act 5 is left, and we have done our The Cookie Lady in Prism. Now we are going to see Beethoven, the second last, not second, third last poetry. Okay, after that we are having two more poetries. Okay, then we are done with our Rhapsody. Okay. So, yep, this is the 13th poetry named Beethoven. Now, ये जो नेम है टाइटल itself, the title is saying this whole poem, this entire poem is about a great musician, the great composer Beethoven. So it is written by Shane Koenigsegg, who is the poet Shane Koenigsegg. Shane Koenigsegg, you are reading about him for the very first time. कौन थे ये कैनेडियन पोइट थे, ठीक है, एक कैनेडियन पोइट थे एंड ही ऑल्सो यूज टू राइट द स्टोरीज. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पोर्ट्रेट को. ओके, बेथोवन को समझने के लिए बेथोवन को देखना पड़ेगा, isn't it? So yep, he was Beethoven, the greatest composer, the greatest musician, right? Now what make him greatest, what make him, yeah, the scolding and the abusive manner of his father. His father treat him very badly, that I tell you right now. But first of all, just look at him, glance over him. He was Beethoven, the greatest pianist. Basically he was the pianist means जो piano को बहुत excellent way में बजाते हो, isn't it? This is the piano you could see over here. Okay, so he was the greatest pianist, who used to play pianist in a very energetic way, in a very advanced way. Okay, so let's first understand about Shane Koenigsegg. So he was Shane Koenigsegg. Yeah, he is Shane Koenigsegg basically. He is present right now. Okay, so Shane Koenigsegg. He is the Canadian poet and spoken word artist Shane L. Koenigsegg. Okay, कौन थे ये? Canadian poet थे as well as spoken word artist. Okay, he was the spoken word artist as well. Shane L. Koenigsegg. He was born in Yellowknife. कहाँ इनका जन्म हुआ था? Yellowknife. अब ये Yellowknife कहाँ पर है? देखो Yellowknife आपका लाई करता है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो नॉर्थ वेस्ट साइड है उधर ये आपका लाई करता है. सो Yellowknife, north west side, territories to a French mother and a father of First Nations heritage. मीन्स इनकी मदर कौन थी? फ्रेंच मदर थी एंड इनके फादर कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट नेशंस हेरिटेज, मतलब पहले इंसान माने जाते हैं हु वॉज एलिजिबल फॉर द नेशन. ओके, नेशन के लिए रहने के लिए वो पहले ऐसे पर्सन माने जाते हैं जो एलिजिबल थे एक पर्टिकुलर नेशन में, एक अपने देश में रहने के लिए. इजंट इट? येलोनाइफ में पहले पर्सन थे ये. सो you could see his parents were so amazed, so stunned, so what he will, है ना? So look at him, looking little angry, but it's not like that. He is a very cool guy. So let's read about the poem. Okay, Beethoven मतलब शेन कोएनिग्सेग के बारे में ज़्यादा जानना नहीं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है ना? तो इतना कुछ जानना नहीं है. तो अब हम पोम के बारे में ज़रूर जान लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए भाई, पोम इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूँ इस पोम की. देखिए, बेथोवन जो है
वो बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था अपने फादर के थ्रू। ओके, his father used to beat him, his father used to like slap him, he मतलब बहुत अब्यूजिव मैनर में और बहुत ही लाइक अटैक्स होते थे इसके फादर के, है ना। इसके फादर इसे बहुत मारते थे, बहुत मतलब चिल्लाते थे, मारते थे, जैसे कोई मतलब his father used to drink, then his father used to shout on him, then his father used to beat। ये सिनेरियो रहता था पूरा उनका। पहले उन्हें ड्रिंक करके आना है, चिल्लाना है बेथोवेन को और फिर मारना है, इज़न्ट इट। तो इसके फादर मतलब इनके फादर ने बहुत अत्याचार जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, किया था इनके ऊपर। अब अत्याचार क्यों किया था भाई, इससे क्या मतलब इनसे क्या गलती हो गई थी? इनसे ये गलती हो गई थी कि ये सही से म्यूज़िक को कंपोज नहीं कर पाते, सही से म्यूज़िक को बजा नहीं पाते थे, पियानो को सही से बजा नहीं पाते थे। बट ये किनकी नज़र में था? ये इनके फादर की नज़रिए में था कि ये अच्छे से बजा नहीं पाता है। बट ये अपना 100 क्या अपना 200% देता था, अपना 200% देता था हर चीज़ को करने के लिए। मतलब ये हमेशा चाहता था कि मैं बहुत अच्छा बनूं, जिससे मैं अपने फादर का नाम रोशन कर सकूं और उनसे अपने लिए कुछ तारीफ़ के शब्द सुन सकूं। पर ऐसा कभी नहीं होता था। वो चाहे अपना 200% दे, अपना 200% दे, कितना भी परसेंट दे, है ना, अपना 200% दे, इवन तब भी उसके फादर उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी खुश नहीं होते थे उससे, कभी उससे सेटिस्फाई नहीं होते थे, है ना। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट शब्द है, उसे आप सुनेंगे। ओके, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पर, नॉट गुड इनफ। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट गुड इनफ। नॉट गुड इनफ का मतलब क्या है? ज़्यादा बेहतर नहीं है, है ना। तो चाहे वो कितना भी अच्छी तरीके से बजा लेता था हो, है ना, लाइक बेथोवेन, पर इसके फादर हमेशा उससे क्या कहते थे? नॉट गुड इनफ। मतलब तुमने अच्छा नहीं बजाया है ना, तुम्हारा ये पियानो जो है वो अच्छा नहीं बजाया। एक और कैरेक्टरिस्टिक है बेथोवेन की, बेथोवेन वॉज डेफ। या बेथोवेन वॉज डेफ, ही वॉज डेफ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ आप सबको पता है, जैसे कि आप लोग भी अपनी रैप्सोडी बुक में, टेक्स्ट बुक में इसे लिख सके। ही वॉज डेफ मतलब वो कभी सुन नहीं सकता था। हिंदी में जिसे कहते हैं ना बहरा, वो बहरा था, इज़न्ट इट। ही वॉज अनेबल टू लिसन। अब आपको खुद पता होगा एक म्यूजिशियन के लिए, एक पियानिस्ट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो पियानिस्ट हो कोई भी हो, एक म्यूजिशियन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है सुनना। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो अपने अंदर वो कैरेक्टर्स, अपने अंदर वो ट्रेट्स कैसे ला पाएगा भाई। फॉरगॉट मी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंट आपके पास या मेरे पास ईयर्स नहीं है, चलो ठीक है, मेरे पास ईयर्स नहीं है, आई एम डेफ, जस्ट सपोज मैं डेफ हूँ, ठीक है। अब आप मुझसे कहो कि पियानो बजाओ, ठीक है, आप मुझसे कहो या ड्रम बजाओ, ड्रम, तो जब तक मुझे खुद को सुनाई नहीं देगा, है ना, जब तक मुझे खुद को सुनाई नहीं देगा तो मैं कैसे बजा सकता हूँ ड्रम? क्योंकि मुझे नहीं पता कैसा बजा रहा हूँ, अच्छा बजा रहा हूँ, बुरा बजा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इज़न्ट इट। तो यही बेथोवेन के साथ था। बेथोवेन नहीं जानता था कि वो कैसा बजा रहा है, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता था। ही वॉज नॉट हैविंग एयर ड्रम्स, उसके पास एयर ड्रम्स नहीं थे, वो नहीं सुन सकता था, इज़न्ट इट। सो ड्यू टू लैक ऑफ और ड्यू टू डिवॉइड ऑफ दीज ईयर्स, okay, due to devoid of these ear like listening capacities, he gave his 100%, but he always unable to please his father. हमेशा वो never contented his father, कभी वो satisfy नहीं कर पाता था अपने पापा को, है ना, और इसलिए उसे मारा जाता था क्योंकि तुम अच्छा नहीं बजाते हो, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हो गए। दूसरा देखो, वो इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गया था, या आप कह सकते इतना इन्फैचुएट हो गया था म्यूज़िक से बेथोवेन, कि उसने अपने पियानो की लैग्स, मतलब एक स्टैंड टाइप का लैग होती है, जैसे हमारे टेबल, जस्ट सपोज टेबल होती है, टेबल के नीचे लैग होती है जो सपोर्ट देती है उसे, है ना, ऐसे ही पियानो के नीचे लैग्स होती हैं, आप देख सकते हैं। सी, ये तो पियानो इस तरीके का है, पर नीचे यहाँ पर जस्ट सपोज लैग्स हैं,
है ना। तो बेथोवन ने सुनने के लिए इसकी लेग्स को ही कट शॉर्ट कर दिया था, इसकी लेग्स को ही काट दिया था पियानो की, जिससे कि वो क्या कर सके, सुन सके। वो कैसे सुनेगा, देखो जब उसकी लेग्स नहीं होंगी तो जो पियानो है, जो ये पार्ट है पियानो वाला, कीज़ वाला जो पार्ट होता है बेसिकली, ये पार्ट ज़मीन पर आ जाएगा। रीज़न जब हम किसी की टांगे काट देते हैं तो वो ज़मीन पे आ जाता है, राइट। जब वो ज़मीन पे आ जाएगा तो जब भी वो बजाएगा, जब भी वो पियानो को बजाएगा तो वो अपने हाथों को, अपने ईयर्स को कहाँ रख देता है, ज़मीन पर रख देता है, जिससे कि ज़मीन से उसकी वाइब्रेशंस वो सुन सके, मतलब वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सके अपनी बॉडी में। वो इसलिए उसने अपनी टांग, मतलब अपने पियानो की टांगे भी काट दी थी, जिससे जब भी वो बजाए तो वाइब्रेशन के थ्रू जो पियानो में वाइब्रेशन होता है वो ट्रांसफ़र होगा अर्थ में, सिंपल सी बात है ना। और उसी वाइब्रेशन के थ्रू उसके कान लगाकर वो सुन सके कि मैं कैसा बजा रहा हूँ, मतलब वो थोड़ा सा देख सके कि वो कैसा बजा रहा है। समझ आया। तो ये ओवरऑल एक कंडीशन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने अभी बताया, नॉट गुड इनफ। तो वो मतलब बेथोवन वो कितना भी कर लेता पर उसे कभी भी वो तारीफ, वो एप्रिसिएशंस, लाइक एप्रिशंस, ओके, और वो इज्जत बेसिकली आप कह सकते हैं नहीं मिलती थी, ओके। वो टैलेंट उसका कभी वैल्यूड नहीं होता था उसके फादर के थ्रू, इज़न्ट इट। और हमेशा उसके फादर जो हैं वो उस पर एक तरीके से गुस्सा करते रहते थे, इज़न्ट इट। चाहे बेथोवन स्लोली बजाए, चाहे पियानो को, मतलब उसे लगता होगा कि शायद मैं बहुत तेज़ बजाता हूँ इसलिए पापा मुझसे गुस्सा रहते हैं, इज़न्ट इट। चाहे वो तो इसलिए वो स्लो कर देता था अपनी स्पीड को, चाहे वो अपनी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देता था, चाहे वो उसे सॉफ्टली बजाता था, चाहे वो उसे स्ट्रांगली बजाता था, पर उसके फादर हमेशा एक ही शब्द कहते थे कि भाई अच्छा नहीं बजा रहे हो तुम, इट इज़ नॉट गुड इनफ। इवन वो बजा बजा कर उसकी जो मतलब हाथ हैं, हैंड्स हैं उसके, सॉरी, जो हाथ हैं वो उसके बिल्कुल स्टिफ हो गए थे। स्टिफ का मतलब होता है अकड़ गए थे, जैसे कि कोई ट्री होता है। यहाँ पर एक ट्री की बात की गई है, ओके, ग्रेलेट रूट्स, ये मतलब रूट्स की बात की गई है। तो उसकी उंगली बिल्कुल ऐसे ही क्रैम्प हो जाती थी, इतनी ही अकड़ जाती थी और बहुत दर्द होता था, है ना। फिर भी उसके फादर एक ही शब्द कहते थे कि भाई तुम अच्छा नहीं बजा रहे हो, इट इज़ नॉट गुड इनफ, है ना। बीइंग डिवॉइड ऑफ ईयर्स, ईयर्स नहीं है उसके पास, आप समझ सकते हैं एक म्यूजिशियन के पास ईयर्स नहीं है, जो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे प्रीशियस लाइक ऑर्गन होता है ईयर फॉर एन इंस्ट्रूमेंटर, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसके लिए, एक म्यूजिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईयर्स, तभी वो सुन पाता है कि मैं कैसा बजा रहा हूँ, पर उसके पास वो थे नहीं। बीइंग डिवॉइड ऑफ ईयर्स ही वॉज प्लेइंग अ पियानो, but rather than appreciation he was facing pain, suffering and all the agony of his father। तो आप थिथनस, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी थी, थिथनस और बेथोवन को कुछ रिलेट कर सकते हैं। दोनों में पेन और सफरिंग दिखाई गई है। एक अपनी बॉडी से सफ़र कर रहा है, अपने लाइक सोमैटिक सफरिंग है एक के अंदर इमोशनल ट्रॉमा है ना। तो दोनों को आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स मूव टू द पोएम एंड लेट्स रीड अबाउट द पोएम। बेथोवन बाय शेन कोइंगजेन इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पोएम। ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गाइस ये जो पोएम है ये एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है, ओके। इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पोएम विच यूजेस विविड इमेजरी। अब भाई ये विविड इमेजरी क्या होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विविड इमेजरी। तो जब कोई राइटर है ना, जब कोई राइटर या ऑथर या पोइट है ना, जो भी पोएम को लिख रहा है, जब भी कोई पोइट अपने 5 सेंसेस को, मतलब रीडर से रिक्वेस्ट करता है बेसिकली कि आप अपने 5 सेंसेस का यूज़ कीजिए टू रीड दिस पर्टिकुलर ऑथर्स पोएम। जब जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है हम लोगों से, वी आर द रीडर, इजंट इट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम रीडर्स हैं। तो जब पोइट रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप लोग अपने 5 सेंसेस को ओपन रखिए। हमारी 5 सेंसेस क्या हैं? आइज, ईयर्स, नोज, माउथ लाइक टंग एंड स्किन।
Isn't it? These are the five senses. अब जब भी पोइट कहता है कि भाई आप अपने फाइव सेंसेस से इस पूरी पोअम को पढ़िए, अब आप फाइव सेंसेस से कैसे पढ़ेंगे इस पोअम को? लेट मी टेल यू। देखिए, सबसे पहले आता है आपकी आइज़। अनलेस यू विल नॉट पॉन्डर फ्रॉम योर आइज़, जब भी हम कुछ सोचते हैं, अभी मैं आपको पोअम पढ़ाऊँगा, जब मैंने आपसे कहा बेथोवेन की जब मैंने आपसे कहा थिथोनस की कंडीशन बहुत मिजरेबल थी, वो ना ही मर सकता था ना ही जी सकता था, तो आप तुरंत अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले गए होंगे कि हाँ शायद थिथोनस ऐसे दिखता था, शायद उसकी कंडीशन ऐसी थी, राइट? तो ये होता है हमारा क्या, हमारी आइज़ का रोल। सो दिस इज़ आइज़, है ना? इसमें कितना बढ़िया रोल था, है ना? आप आइज़ से सोच रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपकी नोज़। जब भी मैं कहता हूँ डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट की बात करते हैं, वो लोग गए थे फ्लेक्स डैम में कितनी स्मेल आ रही थी, फेस्टर्ड, है ना, स्मेल आ रही थी, तो उसमें आपने नोज़ का मतलब इस्तेमाल किया, आपने नाक से स्मेल की, शायद ऐसी स्मेल आ रही होगी, है ना? ये तो है, तो ये आ गया, हो गया आपका नोज़ का यूज़। नेक्स्ट ईयर्स का। जब मैंने कहा बेथोवेन जो है ही वॉज डिवॉइड ऑफ ईयर्स, वो सुन नहीं सकता था, तो आपने भी यू स्टार्ट पॉन्डरिंग, आपने सोचना शुरू किया होगा कि शायद उसके ईयर्स नहीं होंगे, वो उस तरीके से नहीं सुनता होगा, है ना? और यह मैंने कोई एग्जांपल दिया, जस्ट सपोज एक पोअम है जिसमें जो पोइट है वो सुनता है उस आवाज़ को कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो आपने भी सोचा होगा कि वो किस तरीके से सुन रहा होगा, इज़न्ट इट? सो दैट इज़ योर ऑडिटरी इमेजरी, वो आपकी ऑडिटरी इमेजरी होती है। एंड नेक्स्ट आपकी टंग हो गई, आपकी स्किन, है ना? आपकी स्किन, अब जैसे कोई टच कर रहा है ना, कोई पोइट किस चीज़ को टच कर रहा है, तो आप भी सोचेंगे कि किस तरीके से टच कर रहा होगा, क्या इमोशंस रहे होंगे, क्या क्या, ये आपका हो गया पूरा स्किन का। तो ये फाइव सेंसेस हमारे होते हैं, ईयर, आइज, स्किन, नोज एंड आर व्हाट, टंग, इजंट इट? ठीक है, नोज़ अगर आपने याद हो, सो एक पोअम थी आपकी क्लास टेंथ में एक पोअम थी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रही, बट उसका फर्स्ट स्टैंजा की याद आ रही है। दे वर रोजेस ऑल द वे, है ना? तो रोजेस जब आपने सुना होगा कि चारों तरफ, जब वो सोल्जर आ रहा था तो चारों तरफ रोजेस थे, है ना? तो आपने किसका इस्तेमाल किया होगा भाई? अपनी नोज़ का इस्तेमाल किया होगा कि स्मेल आ रही होगी, ये, है ना? तो ये सारे फाइव सेंसेस होते हैं आपके। जब भी आप फाइव सेंसेस की बात करते हैं तो विविड इमेजरी आती है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, ठीक है? सो ही हैज़ यूज्ड विविड इमेजरी टू एक्सप्लोर थीम ऑफ एक्सेप्टेंस। इट इज़ द थीम ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना, कि किस तरीके से वो उसके फादर कभी बेथोवेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Okay, Beethoven suffered from severe physical and emotional abuse. Yet, his whole existence was so caught up in trying to achieve the pinnacle of excellence. What is pinnacle? Pinnacle मतलब होता है the most pinnacle. Pinnacle का मतलब होता है कि भाई सबसे एक्साइटिंग, सबसे सक्सेसफुल पार्ट, है ना? आपकी एक्सीलेंस का सबसे सक्सेसफुल पार्ट जो होता है वो बेथोवेन ने अचीव कर लिया था। मीन्स ही वॉज ट्राइंग टू अचीव द मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ एक्सीलेंस दैट ही फाउंड इन अ वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद अदर्स, जो उससे दूसरों से बहुत डिफिकल्टली कनेक्ट करता है, इजंट इट? सो आई होप आपको विविड इमेजरी समझ आ गई होगी, ठीक है? एंड आपको जो मैंने सारी फाइव सेंसेस की बात बताई वो भी समझ आ गई होगी, है ना? तो अब विदाउट वेस्टिंग नो टाइम लेट्स स्टार्ट द पोएम। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस पिक्चर को देखना चाहेंगे आप, है ना? सो दिस बॉय इज़ नथिंग बट बेथोवेन, है ना? ही इज़ बेथोवेन। ही इज़ ट्राइंग टू प्ले द पियानो बट his father is so angry because he never pleased, he never satisfied with this boy. Okay, कितना भी अच्छा वो करे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते थे इस बच्चे से, राइट? एंड परहैप्स शी इज़ द मदर ऑफ बेथोवेन। ओके, मदर की कोई बात नहीं कही गई है, तो इसे देखकर जल्दी से हम अपनी स्टोरी पे, मतलब शॉर्ट
पोइट्री पे बढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी पोइट्री है ओवरऑल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट most important word says listen. Okay, now here this word is very 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 important. Okay, ये listen word जो है वो बहुत important है, तो चलिए समझते हैं। Listen, his father made a habit out of hitting him. See, some men drink, some men yell, some men hit their children. This man did it all because I guess all men wants their children to be genius. देखो यहाँ पर जो लिसन वर्ड है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। इट इज़ एन लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, लाइक स्टॉप, लिसन, कम, गो, दीज ऑल आर द सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। सो इम्पेरेटिव या इम्पेरेटिव कुछ भी बोलेंगे, मैं इम्पेरेटिव बोलता हूँ, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये एक ओवरऑल। ओके, ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बताता है कि हाउ लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। मतलब यहाँ पर लिसन वर्ड के दो एस्पेक्ट्स हैं और दोनों एस्पेक्ट्स में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एस्पेक्ट है कि हमें कितना ज़रूरी है म्यूज़िक को सुनना। अगर हमें म्यूज़िक को समझना है, बेसिकली बेथोवेन को समझना है, दिस ग्रेट म्यूजिशियन को समझना है, तो हमें सुनना पड़ेगा। ओके, सुनना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हेयर शेन कोइंसन सेड लिसन। ठीक है, पहला एक्सपेक्ट तो आपकी बुक में ही है, ठीक है, आपकी शॉर्ट स्टोरी में यही यही एक्सप्लेनेशन है कि लिसन मतलब आपको सुनना, मतलब बेथोवेन को समझना, इस ग्रेट पियानिस्ट को समझने के लिए आपको सुनना पड़ेगा उसे, क्योंकि जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं तब तक आप उसे नहीं समझ पाएंगे। पहला ये। दूसरा एक्सपेक्ट मुझे लगता है, मतलब मैंने अपनी तरफ से सोचा है, दूसरा एक्सपेक्ट बताइए कितना सही है कितना नहीं। लिसन इसलिए यूज़ किया जा सकता है, देखिए जब भी हम कहते हैं, देखिए जब भी मैं आप मतलब वीडियो बनाता हूँ मैं, है ना, तो मैं कहता हूँ अब इसे ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जब भी मैं ऐसे शब्दों का यूज़ करता हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रेशराइज करके जब भी किसी शब्द को हम यूज़ करते हैं तो उससे बच्चा जो है या उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मतलब एकदम अटेंशन हो जाते हैं, एकदम अटेंटिव हो जाते हैं कि भाई अब टीचर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला है, तभी उसने इतने प्रेशर से कहा है ना, तो अटेंटिव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शेन कोइजेन इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इस इम्पेरेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लिसन। ओके, सो जब उन्होंने इस तरीके का लिसन, तो हमारे जो सेंसेस हैं वो अपने आप अरोज हो जाते हैं, अपने आप अराइज हो जाते हैं, अपने आप हम लोग अटेंटिवली सुनने लगते हैं। ओके, तो दूसरा एक्सपेक्ट ये है इसका, जो कि मैंने सोचा था। दोनों एक्सपेक्ट सेम ही है ना। तो यहाँ पर जो लिसन वर्ड है वो सिग्निफिकेंट है, जैसे कि मैंने बताया। ओके, सो यहाँ पर बताया जाता है कि उसके फादर जो हैं उन्होंने एक हैबिट बना ली थी बेथोवेन को मारने की, आउट ऑफ हिटिंग हिम। हिटिंग का मतलब है बीटिंग। ओके, बीट करने की एक हैबिट बना ली थी, मतलब ऑन द यूजुअल बेसिस ही यूज टू बीट द बेथोवेन। बेथोवेन को वो रोज़ मारते थे, मतलब एक हैबिट बना ली थी उन्होंने। हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, है ना। उसके फादर ने मतलब ऑन द बेसिस रोज़ वो उसे मारते थे, रोज़ एक आदत बना दी थी उसे मारने की। सी, some men drink, some men yell, some men hit their children. This man did it all because I guess all men wants their boys to be geniuses. मतलब देखो, अब पोइट एकदम कहते हैं देखो, दिस इज अगेन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है सी, जिससे हमारा अटेंशन दोबारा अरोज हो सके, है ना। सी, देखो जो कुछ मैन होते हैं, कुछ फादर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को ड्रिंक करके मारते हैं। हमारी इंडिया में ये बहुत होता है, इजंट इट। ये जो फादर है वो ड्रिंक करके आया, उसने अपने बच्चों को बहुत मारा, इजंट इट। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनके फादर ड्रिंक करके, शराब पी कर मारते हैं उन्हें, है ना। और कुछ सम मैन येल, और कुछ जो फादर्स होते हैं, मैन का मतलब यहाँ फादर से है, ठीक है। कुछ फादर्स जो हैं वो अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं। येल का मतलब होता है शाउट।
ओके कुछ फादर्स जो हैं वो अपने बच्चों को मारते हैं शराब पीकर, ड्रिंक करके, और कुछ बच्चों को वो चिल्लाते हैं, और कुछ बच्चों को तो वो मारते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं कि कुछ फादर्स जो हैं वो शराब पीकर आते हैं, ठीक है, होश में नहीं रहते, और कुछ फादर्स जो हैं वो बच्चों को चिल्लाते हैं, और कुछ तो ऐसे फादर्स होते हैं वो अपने बच्चों को मारते हैं। सम मैन हिट देयर चिल्ड्रन, मैन का मतलब यहाँ फादर से है, ठीक है। दिस मैन, और ये जो आदमी है मतलब बेथोवेन का फादर, ये मैन है, he did it all because I guess all men wants their children to be genius। और ये जो बेथोवेन का फादर है, ये तो सब काम करता है, मतलब वो शराब पी कर भी आता है, वो बेथोवेन पर चिल्लाता भी है, और इवन बेथोवेन को मारता भी है ऑन द डेली बेसिस। क्योंकि शायद अब मतलब एक अजम्पशन लगा रहे हैं पोइट कि शायद ये सारे फादर्स जो अपने बच्चों को मारते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, ये सारे फादर्स शायद अपने बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं। ओके मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हर फील्ड में जीनियस हों, जो भी काम कर रहे हैं उस फील्ड में ये एक्सेल करें। ओके जैसे कि अगर हम बेथोवेन की बात करें तो हिज फादर वांट टू मेक हिम अ म्यूजिशियन, अ ग्रेट म्यूजिशियन। सो वो चाहते हैं कि बेथोवेन इस फील्ड में मतलब एक ग्रेट म्यूजिशियन बने। जीनियस का यहाँ पे मतलब होगा म्यूजिशियन, मतलब पियानिस्ट आप कह सकते हैं। Okay, pianist. Now Beethoven, little boy, living in a house where a name meant nothing, living in a house where mercy had to be earned through each perfect note tumbling up through the roof to tickle the toes of angels whose harps couldn't hold half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing। क्या पर ये जो बेथोवेन है, ओके, ये मतलब इसके टैलेंट की इसके घर पे कोई भी वैल्यू नहीं करता था। इसके फादर इसके टैलेंट की मतलब चाहे वो कितना भी अच्छी तरीके से पियानो को बजा रहे, बट उसका कभी भी नाम नहीं होता था, उसकी कभी भी तारीफ़ नहीं होती थी, उसका फादर कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं करता था। ओके तभी यहाँ पे लिखा है लिविंग इन हाउस a name meant nothing, मतलब एक ऐसे घर में रहता था वो जहाँ पर उसकी तारीफ़ ही नहीं होती थी। मतलब चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसके टैलेंट की कभी भी वैल्यू नहीं होती थी। नेक्स्ट दोबारा कहते हैं लिविंग इन हाउस, दिस इज़ रेपिटेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो रेपिटेशन हो रहा है। लिव इन अ हाउस वेयर मर्सी हैड टू बी अर्नड थ्रू ईच परफेक्ट नोट टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ टू टिकल द टोज ऑफ एंगल, मतलब एक ऐसे घर में रहता है वो बेथोवेन जो है, वो एक ऐसे घर में रहता है जहाँ पर मर्सी, जहाँ पर जो दया है, ओके, जो मर्सी है उसे हर एक परफेक्ट नोट पर कमाना पड़ता है। मतलब अगर तुमने एक अच्छी तरीके से पियानो बजाया, तुमने पियानो अच्छी तरीके से बजाया तो तुम्हें दया मिलेगी, तो तुम्हारे फादर अप्रिशिएट करेंगे। अगर तुमने वहीं गलत पियानो बजा दिया तो तुम्हारे फादर मतलब बेथोवेन के फादर जो हैं वो उसे मारते हैं। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है अगर तुमने अच्छा काम किया म्यूज़िक में तो फादर जो है बेथोवेन के वो अप्रिशिएट करते हैं उसे, और जैसे ही उसने कुछ गलत काम किया तो उसे पिटाई पड़ती है, उसे मारा जाता है। इज़न्ट इट? तो यही कह रहा है कि एक ऐसे घर में वो रहता है जहाँ पे मर्सी हर एक परफेक्ट नोट पे, हर एक परफेक्ट म्यूज़िक पे बजानी पड़ती थी। ओके नोट्स क्या होता है? एक परफेक्ट म्यूज़िक। ओके नेक्स्ट टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ टू टिकल द टोज ऑफ एंगल, मतलब हर एक परफेक्ट नोट्स पे जो रूफ है वहाँ से, टम्बलिंग का मतलब होता है भाई फॉल डाउन। ओके मतलब रूफ है वहाँ से एंजल्स जो हैं उनसे अपील की जाती है। टिकल द टोज का मतलब है यहाँ पर एक फ्रेज है यहाँ पर टिकल द टोज विच मीन्स रिक्वेस्ट, है ना। तो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दया तभी मिलती है, यहाँ पे मर्सी तभी मिलती है जब हम एक बहुत परफेक्ट नोट बनाएं, एक बहुत परफेक्ट म्यूज़िक को कंपोज करें। पर हमारा परफेक्ट म्यूज़िक कब कंपोज होगा? जब ऊपर आसमान से कई सारी एंजल्स, कई सारी परियां आएँ और अपने टोज से, अपने पैर के अंगूठे से, यहाँ पर कहा जा रहा है ओके सॉरी, टिकल द टोज का मतलब है प्लीज़ करें, अपीस करें, ओके अपील करें, मतलब रिक्वेस्ट की जाती है उनसे, उन परियों से
whose harp couldn't hold half the person. Okay, so through each perfect note tumbling up through the roof to tickle the toes of angels whose harps couldn't hold half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing. So here he want to say that वो एक ऐसे घर में रहता था जहाँ पर मर्सी जो है, जो दया है, उसे कमाया जाता था एक परफेक्ट नोट से. मतलब अगर आपने एक परफेक्ट नोट, अगर आपने एक परफेक्ट लाइक म्यूज़िक बजाया तो आपको सब अप्रिशिएट करेंगे, आपके फादर आपको अप्रिशिएट करेगा, है ना. बट उस परफेक्ट नोट के लिए यू हैव टू टम्बलिंग का यहाँ पे मतलब बताया गया है. टम्बलिंग का मतलब होता है किस चीज़ का नीचे उतरना, ठीक है. तो जो टम्बलिंग है, टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ ऑफ टू टिकल द टोज ऑफ एंगल्स, मतलब इतना अच्छा तुम्हारा मतलब इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि जिसे सुनकर जो परियां हैं, जो एंजल्स हैं, वो तक उतर आए ज़मीन पर. मतलब उनके पैरों में भी टिकल होने लगे. टिकल द टोज का मतलब है उन्हें मतलब उनके पैरों में खुजली होने लगी बेसिकली, जिससे कि वो एंजल्स भी उतर आए. समझ पा रहे हैं. यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इतना अच्छा आप पियानो, मतलब तब आप अप्रिशिएट होगे जब तक आप इतना अच्छा पियानो नहीं बजा लेते कि जो परियां हैं वो आसमान से उतरकर नीचे तुम्हारा पियानो सुनने के लिए आ जाएं. तब तक तुम्हारा अप्रिशिएशन नहीं हो सकता. मतलब फादर तब तक तुम्हारा अप्रिशिएशन नहीं करता है. ओके. Whose harps couldn't hold half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing. हार्प यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट है जो एंजल्स चलाती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम जब तक हार्प्स की तरह, ओके, जैसे कि हार्प होता है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ऐसी साउंड तुम नहीं निकाल देते जैसे कि एंजल्स निकालती हैं, तब तक तुम अप्रिशिएट नहीं होगी. मतलब ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो यंग बेथोवेन है, ओके, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उसके फादर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतना मतलब परफेक्ट नोट बनाए, इतना परफेक्ट तरीके से लाइक म्यूज़िक या पियानो को चलाए कि उसके फादर जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उसके फादर उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश करते थे, उसके फादर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते थे. ओके. सो couldn't hold half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing. मतलब जो उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट रहता था, ओके, पियानो, वो बिल्कुल किससे मैच करना चाहिए, जो फेज हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स से, तभी उसे अप्रिशिएशन मिलेगी. ओके. एंड बेथोवेन यहाँ पे कहा गया है हु वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग. मतलब बेथोवेन जो है ही वॉज डेफ, ही कुड नॉट लिसन, मतलब वो नहीं सुन सकता था. ओके. ही कुड नॉट हर्ड, सो ही वॉज डेफ. अब आप खुद सोचेंगे एक पर्सन जो डेफ है ना, एक म्यूजिशियन जो डेफ है, उसके लिए मतलब कैसे वो सुन पाता होगा अपने नोट्स को, है ना. जब तक आप खुद के नोट्स को नहीं सुनेंगे, खुद की ध्वनियों को नहीं सुनेंगे, खुद की साउंड्स को नहीं सुनेंगे कि मैं कैसे बजा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, है ना. तो एक म्यूजिशियन के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक म्यूजिशियन के लिए ईयर्स होने, कान होने कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. क्योंकि जब तक कान नहीं होंगे तब तक आप खुद की ही आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और खुद की गलतियों को ही नहीं सुधार पाएंगे, है ना. तो बीइंग डेफ, बीइंग डिवॉइड ऑफ ईयर्स, हिज फादर मेड हिम परफेक्ट. मतलब हिज फादर ट्राई टू मेड हिम परफेक्ट. नाउ बेथोवेन, who heard his father's anthem every time to put fingers to ivory. It was not good enough, so he played slowly. Not good enough, so he played softly. Not good enough, so he played strongly. Not good enough. Now जो बेथोवेन है, ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है बेथोवेन है he who heard his father's anthem every time he put finger to ivory. It was not good enough. मतलब जो बेथोवेन के फादर हैं वो उससे एक ही शब्द कहते थे. एंथम का मतलब है वर्ड, उसके शब्द. यहाँ पर मतलब जो उसके फादर के शब्द हैं वो उस मतलब एक ही चीज़ कहते थे, वो एक ही चीज़ सुनता रहता था 24 घंटे कि ये सही नहीं है. मतलब
ये अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड इनफ। और इसके लिए अगर वो अच्छा नहीं होता था तो हर टाइम मतलब जिस जिस दिन भी बेथोवन अच्छे से नोट प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, उसी दिन उसके फादर क्या करते थे, गर्म चिमटे पर, आइवरी इज वॉट चिमटा टाइप का होता है, फ्लैप्स जिसके दो होते हैं, टॉन्स, राइट। तो वो चिमटा, गर्म चिमटे पे उसका हाथ जलाते थे, है ना, उसका हाथ जलाते थे गर्म चिमटे पर, और यही एक ही चीज़ कहते थे, इट वॉज नॉट गुड इनफ। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जिस भी दिन उसके फादर को लगता था कि ये जो म्यूज़िक बजा रहा है वो, ये जो पियानो बजा रहा है वो अच्छे से नहीं बजा रहा है, तो उसके फादर क्या करते थे, गर्म चिमटे पर उसका हाथ रख देते थे और एक ही चीज़ रिपीट करते थे, इट वॉज नॉट गुड इनफ। तो उन्हें प्लीज़ करने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए बहुत हल्के बजाता था, सो ही प्ले इट स्लोली, मतलब वो हल्के बजाता था, फिर भी एक ही चीज़ उनके मतलब उन्हें उनसे सुनाई देती थी कि ये अच्छा नहीं है, ओके। तो इसलिए वो क्या करता है, सॉफ्टली बजाता था, तब भी वो यही कहते कि नॉट गुड इनफ, ये अच्छा नहीं है, और इसलिए वो स्ट्रांगली बजाता था। मतलब चाहे वो सॉफ्टली बजाए, चाहे वो स्लोली बजाए, चाहे वो स्ट्रांगली बजाए, है ना, उसके फादर के पास से एक ही आवाज़ आती थी, इट इज़ नॉट गुड इनफ, मतलब ये अच्छा नहीं है, तुम अच्छा नहीं बजा रहे हो, है ना। सो हियर यू कुड सी अ फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन, यहाँ पे रिपीट हो रही है, सॉफ्टली, स्लोली, स्ट्रांगली, एस एस एस, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बेथोवेन है, चाहे वो कितने भी अच्छे तरीके, चाहे वो अपना 100% दे, पर उसके फादर कभी भी उससे सेटिस्फाई नहीं होते थे, और सेम शब्द का, सेम फ्रेज का यहाँ पे यूज़ होता था, इट वॉज नॉट गुड इनफ। एंड वेन ही कुड प्ले नो मोर, वेन हिज फिंगर्स क्रैम्ड अप into the granite root of trees trunk, it was not good enough। और जब भी वो प्ले नहीं कर पाता था, क्यों नहीं प्ले कर पाता था, मतलब जब वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता था और अच्छे से नोट प्रोड्यूस करने की, तो उसकी उंगलियां जो है वो स्टिफ हो जाती थी, वो अकड़ जाती थी, तो बिल्कुल कैसी हो जाती थी, बिल्कुल ग्रेनेट रूट की तरह हो जाती थी। वैन इन फिंगर्स क्रैम्ड अप का मतलब अकड़ना, जब भी उसकी फिंगर्स अकड़ जाती थी ड्यू टू एक्सेस प्रैक्टिस, ओके, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करता था, तो वो कैसी लगती थी, बिल्कुल ग्रेनेट रूट की तरह लगती थी। ग्रेनेट रूट इज़ अ टाइप ऑफ अ रूट ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट की रूट होती है। ग्रेनेट मतलब जो ट्विस्टेड रूट्स होती हैं, ओके, बिल्कुल ट्विस्टेड, जैसे अकड़ी हुई रूट्स होती हैं ना, बिल्कुल, है ना, वैसे ही उसकी क्या हो जाती थी, फिंगर्स हो जाती थी स्टिफ, एकदम अकड़ जाती थी, है ना, जब वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। ग्रेनेट रूट ऑफ ट्री ट्रंक्स, इट वॉज नॉट गुड इनफ, मतलब ये अच्छा नहीं है, चाहे उसकी उंगलियां बिल्कुल रूट्स की तरह अकड़ जाएं, फिर भी उसके फादर के मुंह से एक ही आवाज़ आती थी कि ये अच्छा नहीं है, इट वॉज नॉट गुड इनफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, है ना, ज़्यादा अभी तक कुछ ज़्यादा हार्ड तो आया नहीं है, है ना। उसकी उंगलियां जो हैं वो स्टिफ हो जाती थी, ओके। ग्रेल्ड का मतलब है, ग्रेलेट का मतलब है स्टिफ हो जाना, अकड़ जाना, ट्विस्ट हो जाना रूट्स की तरह। तो जब वो ज़्यादा एक्सेस प्रैक्टिस करता था तो उसकी उंगलियां बिल्कुल अकड़ जाती थी, ओके, रूट्स की तरह, जैसे कि ट्री की ट्रंक्स होती हैं, ट्री की ट्रंक्स की जो रूट्स होती हैं पेड़ के तने की, बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है। फिर भी उसके फादर क्या कहते थे, इट वॉज नॉट गुड इनफ, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। Beethoven, a musician without his most precious tool is his eardrums, could not longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind. He couldn't hear the audience clapping, couldn't hear the people loving him, couldn't hear the women in the front row whispering Beethoven. So, एज यू ऑल नो, जो बेथोवेन है वो एक म्यूजिशियन है, और ही इज़ नॉट हैविंग द लाइक, ही इज़ डिवॉइड ऑफ हिज लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स। मोस्ट प्रीशियस टूल का मतलब यहाँ पे क्या है, ईयर्स, ओके, ईयर्स। ही वॉज डिवॉइड ऑफ ईयर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवॉइड ऑफ ईयर्स, उसके पास ईयर्स नहीं थे, ही वॉज डेफ। और आप सबको पता है कि एक म्यूजिशियन के लिए, है ना, एक पियानिस्ट के लिए खुद के ईयर्स होना कितने ज़रूरी हैं। तो बीइंग डिवॉइड ऑफ
ईयर्स, ओके, वो मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी रिदम्स लाइक कुड नॉट लॉन्गर प्रोड्यूस पॉन्ड आउट रिदम्स फॉर द सिम्फनीज प्लेइंग इन हिज माइंड। तो जो भी उसके माइंड में इंस्ट्रूमेंट चलता था, सिम्फनीज का मतलब है इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके, टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। सिम्फनीज जितनी भी उसके माइंड में चलती थी वो उस टाइप की रिदम्स को क्रिएट नहीं कर पाता था। पाउंड आउट का मतलब है रिदम्स, ओके, वो उस टाइप के रिदम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, और ना ही ऑडियंस की, मतलब उसकी जो ऑडियंस आती थी उसे सुनने, ना ही अपनी ऑडियंस की क्लैपिंग को सुन पाता था, ओके, और ना ही उन लोगों को सुन पाता था जो उनसे प्यार करते हैं। मतलब आपने देखा होगा जैसे जो म्यूजिशियंस होते हैं उनसे काफ़ी लोग प्यार करते हैं तो वो वेप करते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, येल करते हैं, इज़न्ट इट। तो जब वो उन्हें मतलब म्यूजिशियन जब उन्हें सुनते हैं तो कितना बड़ा मोटिवेशन उनके दिमाग में आता है। पर बेथोवन के अंदर ऐसा नहीं था, उसके पास ईयर्स नहीं थे, तो वो ना ही लोगों की मतलब चिल्लाहट सुन सकता था, और ना ही लोगों का प्यार सुन सकता था, है ना ही उससे मोटिवेशन वो ले सकता था, ओके। सो वो ना ही लोगों की ऑडियंस की, जो ऑडियंस हैं उनकी क्लैपिंग को सुन पाता था, और ना ही उन लोगों को सुन पाता था जो उन्हें प्यार करते हैं, ओके। और इवन सामने बैठी जो मतलब उसके बिल्कुल फ्रंट पे विमेन बैठी हैं, उनकी क्लैपिंग और उनकी विस्ल्स को नहीं सुन पाता था। जो विस्परिंग करती हैं, सीटी बजाती हैं, उसको नहीं सुन पाता था, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है ना। अब जब मैंने आपसे ये कहा वो क्लैपिंग करता होगा, तो आपने सोचा होगा कैसे क्लैपिंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या यूज़ हुआ, आपकी ऑडिटरी, ओके, आपके ईयर्स के आपकी यूज़ हुआ है ना। तो ये जो है बेथोवन इन सब से क्या था, ये सब चीज़ें उसके पास नहीं थी, ओके, क्योंकि उसके पास ईयर्स नहीं थे। ना ही वो लोगों की क्लैपिंग सुन पाता था, ना ही लोगों जब चिल्लाते थे वो सुन पाता था, और ना ही वो उन इंस्ट्रूमेंट को सुन पाता था जो वो चलाता है, ठीक है। बेथोवन, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। Beethoven, as they let the music invade their nervous system like an armada marching through firing cannonballs, detonating every molecule in their bodies into explosions of heavenly sensation, each note leaving track marks over every inch of their bodies, marking their arc. For one more hit, he was an addiction. And he was an addiction, okay. Now जो बेथोवन था, ओके, जब भी वो मतलब म्यूज़िक बजाता था, जब भी वो म्यूज़िक को प्ले करता था, तो जो उसका नर्वस सिस्टम है, ओके, उसका खुद का नर्वस सिस्टम है, ओके, जब भी बेथोवन म्यूज़िक मतलब पियानो बजाता था, isn't it? तो जो ऑडियंस बैठी है, ओके, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम से अटैक करता था, ओके। इन्वेड का मतलब मैंने पहले ही बताया है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट में, अटैक, ओके, अटैक करता था, ओके, उनके ही नर्वस सिस्टम पर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जब भी जो बेथोवन है अपना पियानो बजाता था, तो उन पियानो की ट्यून्स जो हैं वो ऑडियंस के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती थी, मतलब उनके नर्व्स को बहुत जल्दी से स्पेल आउट करती थी, इधर उधर फेंकती थी, isn't it? बिल्कुल किसकी तरह, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एरमेंडा। एरमेंडा एक शिप था, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। एरमेंडा जो है, एरमेडा एक शिप था, ओके। अब ये शिप कहाँ था, जो कि कहाँ भेजा गया था, किंग फिलिप के थ्रू, किंग फिलिप सेकंड हैं उनके थ्रू भेजा गया था, स्पेन से इंग्लैंड भेजा गया था। ध्यान से समझेंगे इस शिप को, स्पेन से इंग्लैंड भेजा गया था। क्यों? जब इंग्लैंड पे अटैक करने के लिए, टू अटैक इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए स्पेन से भेजा गया था ये शिप, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने उस शिप पर ही आग लगा दी, मतलब उस शिप पर ही मतलब जो गोला बारूद है वो फेंकने लगे, उस शिप पर ही आग लगा दी, isn't it? ये शिप जो है वो स्पेन से इंग्लैंड भेजा गया था 1588 में,
ये पूरा एक हिस्ट्री की जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। 1588 में शिप जो है स्पेन से इंग्लैंड भेजा गया था फॉर टू अटैक इंग्लैंड। ओके, पर ऐसा क्या हुआ कि अरमांडा जो है वो मार्चिंग थ्रू फायरिंग कैनन वॉल्स डिटोटिंग एवरी मॉलिक्यूल इन देयर बॉडीज इनटू एक्सप्लोजन ऑफ हेवनली सेंसेशन। मतलब जो वहाँ के इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने उल्टा उस शिप पर ही आग लगा दी थी। मतलब भेजा तो इसलिए गया जिससे वॉर में इस शिप से काफ़ी लोग मर जाएं, पर उल्टा जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने इस पर ही, मतलब इस शिप पर ही जो स्पेन में भेजा गया, स्पेन से भेजा गया था, स्पेन की शिप पर ही आग लगा दी और पूरे शिप को तबाह कर दिया। किससे आग लगा दी? मार्चिंग थ्रू फायरिंग कैनन बॉल्स, मतलब जो गोला बारूद हैं उन्हें फेंक कर। फायरिंग मतलब फेंकना, इजंट इट? डिटोनेटिंग एवरी मॉलिक्यूल इन देयर बॉडीज, मतलब जो शिप है उसका एक एक मॉलिक्यूल, मतलब एक छोटा सा छोटा पार्ट उसका जला दिया गया, एक्सप्लोड कर दिया गया बाय द इंग्लैंड। ठीक है, इन देयर बॉडी इनटू एक्सप्लोजन्स ऑफ हेवनली सेंसेशन। और जब ऐसा ही जो है जो बेथोवेन है, ओके, अब यहाँ पे बेथोवेन की बात कर जा रही है कि ऐसा ही जो बेथोवेन है उसकी बॉडी में भी एक हेवनली सेंसेशन हो रहा है, एक ऐसा एक्सप्लोजन हो रहा है जो हेवन के थ्रू, गॉड के थ्रू हो रहा है। मतलब एक डिवाइन फीलिंग उसके अंदर आ रही है। ओके, एक्सप्लोड हो रही है, जैसे कि एरमेडा, जो एरमेडा है उसमें मतलब उस पर जैसे आग लगी थी वैसे ही मेरे अंदर भी एक डिवाइन फीलिंग है, वो आग लगा रही है, मतलब एनर्जी मेरे अंदर भर रही है, कहना चाह रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ की जो एरमेडा है इसकी हिस्ट्री आपको समझ आई होगी। ओके, इफ़ यू वांट यू कुड राइट ओवर देयर। ओके, नेक्स्ट, ईच नोट लिविंग ट्रैक मार्क्स over every inch of their bodies, marking them arc for one more hit. He was an addiction. और बेथोवेन का हर एक नोट, ओके, हर एक नोट उन लोगों के अंदर, जो ऑडियंस हैं उनके अंदर एक ट्रैक मार्क, मतलब एक मार्क छोड़ता जा रहा था हर इंच पर, मतलब उनकी बॉडी पर। उनका जो बेथोवेन का सॉन्ग है, बेथोवेन का जो पियानो है, वो उन पर एक ऐसा जादू सा कर रहा था, है ना, जो उनके अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी इनफिल कर रहा था। ओके, एंड दैट्स वाई मेकिंग दैम आर्क फॉर वन मोर हिट, ही वॉज एन एडिक्शन। मतलब कहना चाह रहे हैं, और इसलिए जो लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो म्यूज़िक है वो फिल हो रहा था, तो क्योंकि इस म्यूज़िक को सुनकर जो लोग हैं वो बिल्कुल एडिक्शन हो गए थे, एडिक्टेड हो गए थे इस म्यूज़िक को लेके, और उन्हें ऐसा ही एक और म्यूज़िक चाहिए था। वन मोर हिट का मतलब है दे नीड वन मोर म्यूज़िक। ओके, एक और उन्हें ऐसा ही म्यूज़िक चाहिए जो उनके अंदर दोबारा से एनर्जी रिफिल कर दे। ओके, क्योंकि वो क्या हो गए थे, दे बिकम द एडिक्शन ऑफ बेथोवेन्स म्यूज़िक, बेथोवेन के म्यूज़िक के वो एडिक्टेड हो गए थे। ओके, नेक्स्ट, एंड किंग्स queens and king's queens, it didn't matter. The man got down on his knees for no one, but amputated the legs of his piano so he could feel the vibrations through the floor. The man got down on his knees for music, and when the orchestra played his symphonies, it was the echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record. It was not good enough. Okay, now देखो, चाहे बेथोवेन के सामने किंग आ जाए, चाहे उसके सामने क्वीन आ जाए, वो किसी के सामने भी अपने घुटने नहीं टेकता था। मतलब वो इतना सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन था, और इतना मतलब उसके अंदर अपने मतलब अपना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वो किसी के सामने, चाहे किंग आ जाए चाहे क्वींस आ जाए, वो किसी के सामने झुकता नहीं था। वो इतना सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन था। यहाँ पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बताई गई है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो क्लाइमेक्स पे थी कि वो किसी को, चाहे वो किंग और क्वीन आ जाए, वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकता था। सिर्फ किसे छोड़कर? सिर्फ अपने म्यूज़िक को छोड़कर। ओके, द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो वन, मतलब वो किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेकता था। बट एम्प्यूटेटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो, लेकिन उसने अपने पियानो की लेग्स, जो पियानो की टांगें होती हैं, उन्हें एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है कट शॉर्ट, काट दिया।
ओके, कट शॉर्ट मीन्स उसने अपने पियानो की टांगों को काट दिया, जिससे कि वो फ्लोर जो है उससे उस पियानो की वाइब्रेशन को सुन सके। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। ओके, उसने क्या किया, उसने जो स्टैंड होते हैं, जो लेग्स होती हैं, उसे कट कर दिया, जिससे कि पियानो जो है वो ज़मीन पर आ सके और वो कान लगाकर ज़मीन से और हाथ लगा के वाइब्रेशंस को सुन सके। समझ आ रहे हैं? सो इसे समझने के लिए आप जहाँ भी बैठे हैं प्लीज़ उस जगह पर एक जगह अपने कान लगाइए और दूसरी जगह उस चीज़ से टैप कीजिए अपने हाथ से, तो आपको वाइब्रेशंस अपने आप सुनाई देंगी अपने कान में, इसंट इट? तो वही सेम ये बेथोवन कर रहा है। तो इसके लिए उसने अपने लाइक पियानो की लेग्स तक को काट दिया था, जिससे कि वो इसके साउंड को सुन सके। ओके, नाउ yep. And when the orchestra played his symphonies, it was the echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record. Okay, like a broken record. Here's some mistake is there. Okay, like a broken record. यहाँ पर क्या होगा आपका? Like a broken record. Okay, it was not good enough, मतलब कहना चाह रहे हैं दैट। और जब भी ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं वो सिम्फनीज़ को प्ले करते थे। ऑर्केस्ट्रा आपने अतिथि में भी पढ़ा हुआ है, मतलब एक ग्रुप होता है लोगों का, म्यूजिशियन का ग्रुप होता है जो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स को चलाते हैं। ओके, एंड सिम्फनीज़ क्या होता है? सिम्फनीज़ आप कह सकते हैं एक बड़ा सा म्यूज़िक पीस होता है। ओके, बड़ा सा म्यूज़िक पीस होता है जिसमें म्यूज़िक लिखा होता है, एक पेपर होता है बेसिकली बड़ा सा जिसमें म्यूज़िक लिखा होता है, किसके लिए? इन ऑर्केस्ट्रा लोगों के लिए। ओके, तो ये सिम्फनीज़ हो गई। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्केस्ट्रा। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी पीपल हु हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और सिम्फनीज़ क्या हो गई? वो लोग जो लाइक म्यूज़िकल पीसेस को कॉम्प्लिकेट करते हैं, मतलब जो ऑर्केस्ट्रा है उसे उस लॉन्ग पीस को मतलब पढ़ते हैं, इज़न्ट इट? तो ये जो दोनों लोग हैं, ओके, जब भी ऑर्केस्ट्रा प्ले करता था सिम्फनीज़ के लिए, इट वॉज द एको ऑफ हिज फादर्स एंथम रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब तो ऐसा लगता था कि जो सेम शब्द उसके फादर्स कहते हैं, उसके फादर ने जो सेम शब्द कहा है, ओके, जो उसके फादर के वर्ड्स हैं वो उसे रिपीट हो रहे हैं। मतलब जब भी जो ऑर्केस्ट्रा हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो रीड करते थे म्यूज़िक को उस पेपर से, तो ऐसा लगता था जैसे बेथोवन के फादर जो शब्द बोलते थे, जो अब्यूज़िव शब्द, जो अब्यूज़िव लैंग्वेज और जो बल्गर लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, वही लैंग्वेज आ रही हो उसके पास। ओके, वही लैंग्वेज उसके पास रिपीट होकर आ रही हो। So next, like a broken record, like a broken record, and broken record is a phrase, okay, जिसका मतलब होता है कि वो बार बार सेम चीज़ कर रहे थे। ओके, बार बार ऑर्केस्ट्रा को प्ले कर रहे थे, सिम्फनीज़ को पढ़ रहे थे, और इसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके फादर उससे चिल्ला रहे हों, बेथोवन के फादर उससे चिल्ला रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट, सो दे प्लेड स्लोली, not good enough, so they played softly, not good enough, so they played strongly, not good enough। तो चाहे बेथोवन स्लोली मतलब बजाता था, चाहे स्ट्रांगली बजाता था, चाहे सॉफ्टली बजाता था, मतलब वो अपने फादर को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। मतलब ये इस बात को सोच रहा है कि देखो जैसे ये लोग बजा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा और सिम्फनीज़ को, ओके, वैसे ही मेरे फादर भी, मतलब मैं अपने फादर के सामने बजाता इसको, तो मेरे फादर ऐसे कैसे कहते, मेरे फादर इस तरीके से बोलते कि चाहे मैं स्लोली बजाता तब भी वो यही कहते इट वॉज नॉट गुड इनफ, चाहे मैं सॉफ्टली बजाता, चाहे मैं स्ट्रांगली बजाता, सेम शब्द यहाँ पर आता, नॉट गुड इनफ। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन so they try to mock the man, make fun of the madness by
mimicking the movement, holding the bows a quarter of an inch above the string, not making a sound. It was perfect. See, the deaf has an intimacy with silence. It's there in their dreams. And the musician turned to one another, not knowing what to make of the man, trying to calculate the distance between the madness and genius. Realizing that Beethoven musical measurements could take you to distance reaching past the towers of Babylon, turning solar systems into symbols that crashing together, causing comet to collide, creating crisp dawns that were so loud they shook the consultation conसल्टेशंस. मतलब यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मतलब है, मतलब जो बाकी के लोग हैं, जो ऑर्केस्ट्रा और सिम्फनीज पे लोग बैठे हैं, वो लोग बेथोवेन का मजाक उड़ाते थे. किस तरीके से? देखो, बाय मिमिकिंग द मूवमेंट्स होल्डिंग देयर बोज अ क्वार्टर ऑफ एन इंच अबव द स्ट्रिंग, नॉट मेकिंग अ साउंड, इट वाज परफेक्ट. मतलब वो क्या करते थे, जब भी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते थे तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं थे, वो इंस्ट्रूमेंट से जो जिस चीज़ से बजाते हैं, जो स्ट्रिंग होता है इंस्ट्रूमेंट का, ओके, सपोज ड्रम का जो स्ट्रिंग होता है जिससे वो बजाते हैं, या किसी भी चीज़ का स्ट्रिंग होता है जिससे वो बजाते हैं, उस स्ट्रिंग को वो इंस्ट्रूमेंट के पास ही नहीं ले जाते थे, वो थोड़े दूर रखते थे, वो बजाते नहीं थे. क्योंकि उन्हें लगता था कि बेथोवेन, आयरॉनिकली उन्हें लगता था कि जो बेथोवेन है वो तो डेफ है. ओके, तो आयरॉनिकली बेथोवेन को लगता था कि ये परफेक्ट है. ओके, उन्हें लगता था कि ये परफेक्ट है क्योंकि बेथोवेन तो डेफ है, तो वो सुन ही नहीं पाएगा. तो इस तरीके से जो लोग हैं वो बेथोवेन का मजाक उड़ाते थे. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके, कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो बेथोवेन के संग थे, है ना, वो क्या करते थे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते ही नहीं थे, थोड़े दूर रखते थे. ओके, जैसे कि ये ड्रम है, मैं एक बहुत सिंपल वे लेता हूँ, ये ड्रम है. ओके, और ये ड्रम का वो जिससे बजाते हैं, तो ड्रम को ये टच, ये जो स्ट्रिंग है, इसे स्ट्रिंग कहते हैं, इस स्ट्रिंग को ड्रम के सरफेस से टच ही नहीं करते थे, थोड़ा दूर रखते थे, थोड़ा इंच के दूर रहते थे, और मतलब ऐसा दिखाते थे कि हम बजा रहे हैं, इज़न्ट इट, जब सिर्फ दिखावा करते थे. तो उन्हें ये लगता था कि जो बेथोवेन है वो तो सुन ही नहीं सकता, बिकॉज आयरॉनिकली वो डेफ है. ओके, तो उसे लगता था कि ये परफेक्ट होगा, ये अच्छी तरीके से बजा रही है, isn't it? So it was perfect. So here he has used irony. क्योंकि आयरॉनिकली उसे क्या लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि जो बेथोवेन है वो डेफ है ना, तो उसे लग रहा हो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं. See, the deaf have an intimacy with silence. It's there in their dreams. Now, अब जो पोइट है वो कहते हैं कि देखो जो डेफ लोग हैं, जो डेफ पर्सन हैं, उनका साइलेंस से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है. इंटीमेसी का मतलब है कनेक्शन. ओके, उनका साइलेंस से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, क्योंकि वो साइलेंस उनके ड्रीम्स में भी होता है, उनके सपनों में भी होता है. ठीक है, आप सबको पता होगा, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग डेफ होते हैं, वो लोग अपनी सपनों में भी आवाज़ को नहीं सुन सकते, है ना. आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जो लोग बहरे होते होंगे, क्या वो लोग सपना देखते होंगे तो उन्हें सुनाई देता होगा? जो लोग अंधे होते होंगे, क्या वो लोग सपना देखते होंगे तो उन्हें दिखाई देता होगा? नहीं. वो लोग, अगर देखो कोई बचपन से ही अंधा है, इज़न्ट इट, तो उससे कुछ नहीं दिखाई देता सपने में. अगर कोई मतलब विद पर्टिकुलर विद डायग्नोस विद सम डिजीज़, कुछ हो चुका है डिजीज़ के थ्रू, तो हाँ, उसे जो चीज़ उसने एक्सप्लोर की है अभी तक ज़िंदगी में, वो दिखाई देती है. ओके, क्योंकि उसने देखा है दुनिया कैसी दिखती है. पर जो जन्म से ही अंधा है, उसे सपने में कुछ दिखाई नहीं देता, जस्ट अ ब्लैंक. और यही बहरों के साथ है, जो लोग बोल नहीं सकते. ओके, और यही जो बोल नहीं सकते उन लोग साथ है, और यही जो लोग सुन नहीं सकते उनके साथ है. उन्हें सपनों में कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ मतलब बोलते तो कुछ बोलता नहीं है, इज़न्ट इट. सो यही कहना चाह रहे हैं कि उसका जो साइलेंस है उससे बहुत गहरा नाता है. वो उसके सपने में भी है, मतलब उसके ड्रीम में भी उसके संग रहता है, क्योंकि ड्रीम में भी वो कुछ नहीं सुन पाता, है ना. एंड द म्यूजिशियन टर्न टू वन अनदर, नॉट नोइंग what to make of the man trying to calculate the distance between madness and genius. मतलब
realizing that Beethoven's musical instrument could take you to distance reaching past the towers of Babylon. मतलब जो बाकी के म्यूजिशियन हैं कोई समझ ही नहीं पा रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये समझते हैं दैट मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि क्या ये बेथोवेन पागल है या जीनियस है ना, क्योंकि वो जब भी वो कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस मैडनेस और जीनियस की, बेथोवेन और जीनियस की, तो जो उनका realizing that Beethoven's musical measurements could take you to distance reaching past the Tower of Babylon. तो जो उनका मेजरमेंट टेप होता है जिससे वो मेज़र करते हैं मैडनेस और जीनियसनेस की डिस्टेंस, तो वो कहाँ तक पहुँच जाता है, बेबीलॉन टावर तक पहुँच जाता है. नाउ टावर ऑफ बेबीलॉन क्या है, ये इतना बड़ा टावर मतलब माना गया है, आपके बाइबल में है ये, जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि टावर ऑफ बेबीलॉन इतना बड़ा है वो हेवन तक जाता है. जो टावर ऑफ बेबीलॉन है वो कहाँ तक जाता है, हेवन तक जाता है. तो जब भी वो इंच टेप लेकर नापते थे, मतलब मेज़र करते थे मैडनेस और जीनियसनेस की डिस्टेंस को, तो वो कहाँ तक जाता था, बेबीलॉन के टावर तक जाता था, मीन्स हेवन तक जाता था. ओके, सो टर्निंग सोलर सिस्टम्स इनटू सिंबल्स, जो कि सोलर सिस्टम्स जो हैं उनको कैसा बना, इनटू क्रिम्बल्स. क्रिम्बल्स क्या है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, लाइक टॉन्स वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि टॉन्स होते हैं जिनके 2 फ्लैप्स होते हैं बेसिकली, वो वाला लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है. तो वो कहाँ तक जाता था, टर्निंग द सोलर सिस्टम इनटू सिंबल्स. यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सिंबल नहीं होगा, क्रिम्बल होगा. ओके, टर्निंग सोलर सिस्टम इनटू क्रिम्बल्स that crash together causing comet to collide to create concentrons that were so loud they shook the constellations. मतलब जो जो उन दोनों की डिस्टेंस है, जीनियस और लाइक जो जीनियस और फुलिशनेस की दोनों डिस्टेंस हैं वो कहाँ तक जाती थी, टावर ऑफ बेबीलॉन तक, जो कि सोलर सिस्टम को क्या बना देती थी, क्रिम्बल्स. क्रिम्बल्स क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है, चिमटे की तरह, जैसे टॉन्स होते हैं, ठीक है, चिमटा बना देती थी. और दोनों की जो टॉन्स हैं इस तरीके से 2 टॉन्स होते थे, जो दोनों के ये टॉन्स हैं, ओके, ये जो टॉन्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते थे, क्रैश हो जाते थे, ओके, और क्या कॉज करते थे, कॉजिंग कॉमेट्स टू कोलाइड. मतलब एक बहुत बहुत बड़ी साउंड जैसे हम कहते हैं, ओके, कॉमेट टू कोलाइड मतलब दोनों एक दूसरे से क्रैश हो जाते थे, एक दूसरे से क्रैश होकर क्रिएटिंग क्रिसेंडोन्स दैट वर सो लाउड दे शूक द कॉन्सल्टेशंस. मतलब एक इतनी तेज साउंड, इतनी हाई पिच की साउंड निकालते थे वो दोनों शूक होकर, ओके, दैट वो दोनों मतलब टकराकर, दैट दे शूक द कॉन्सल्टेशन. मतलब दोनों जो हैं वो क्या कर देते थे, वो कॉन्सल्टेशन क्या होता है, स्टार्स का ग्रुप होता है, तो पूरे स्टार्स के ग्रुप को वो तोड़ देते थे. और until the stars began to fall from the sky and it looked like the entire universe had begun to cry. Distance must be an illusion, the man must be a genius, Beethoven. मतलब वो तब तक तोड़ देते थे जब तक कि सारे स्टार्स जो हैं वो नीचे धरती पर गिर ना जाए टूट कर, ओके, और पूरा यूनिवर्स जो है वो रोने ना लगे. ओके, सो डिस्टेंस जो होगी, लोग मतलब जो पीपल हैं वो क्या कहते हैं कि जो डिस्टेंस है दोनों की, मैडनेस और जीनियस के बीच में, वो शायद एक इल्यूज़न हो, ओके, वो सिर्फ एक फॉल्स आइडिया हो. जो बेथोवेन है, ही मस्ट बी अ जीनियस. जो बेथोवेन है वो अब वो सारे लोग जान गए हैं, सारे लोग मतलब मान गए हैं कि बेथोवेन मैड नहीं है, ही इज़ अ जीनियस, ओके. एंड बेथोवेन हिज थॉट मूविंग at the speed of sound, transforming emotion into music. मतलब बेथोवेन के जो थॉट है, ओके, उनकी साउंड की स्पीड इतनी है कि वो इमोशंस को, जितने भी इमोशंस हैं उसे कैसे कर देता है, म्यूज़िक में ट्रांसफॉर्म कर देता है. मतलब कहना चाह रहे हैं कि बेथोवेन की जो स्पीड है साउंड की, जो वो अपने इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकालता है, उसकी जो पिच है, जो साउंड की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो सैड इमोशंस को म्यूज़िक में ट्रांसफॉर्म कर देती है.
क्योंकि हमने यही देखा बेथोवन का जो सैड मूवमेंट रहा है, जो उसके फादर इतना मारते थे, वो उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, म्यूजिक में कन्वर्ट कर देता था. ओके, एंड फॉर अ मूवमेंट इट वॉज लाइक जॉय, वॉज अ tangible thing, like you could touch it, like for the first time we could watch love and hate dance together in a waltz of such precious and beauty that we finally understood the history wasn't important. कहना चाह रहे हैं मतलब कुछ समय के लिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो जॉय है ना, जो जॉयफुलनेस है वो एक टेंगेबल थिंग, टेंगेबल का मतलब होता है हार्ड, एक टेंगेबल थिंग है, एक हार्ड थिंग है. ओके, एक हार्ड चीज़ है जिसे तुम टच कर सकती हो, जिसे तुम कभी टच कर सकते हो. और ऐसे पहली बार देखा गया है, जैसे कि पहले बार ऐसा आया है जैसे कि लव और हेट दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हों इन अ वैल्स. इन अ वैल्स का मतलब है एक डांसिंग रूम में. ओके, एक डांस कर रहे हो विथ सच परफेक्ट लाइक प्रीशियस एंड ब्यूटी, मतलब इतनी अच्छी तरीके से, इतनी प्रीशियसनेस से, इतनी एक्यूरेसी से और इतनी ब्यूटीफुलनेस से डांस और हेट, जो लव और हेट है वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हो ड्यू टू बेथोवेन्स म्यूजिक. मतलब कहना चाह रहे बेथोवेन इतना जीनियस है कि उसका म्यूजिक जब भी चलता है तो हेट और लव दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं. ओके, और like that we finally understood the history wasn't important to know, that history wasn't important to know the man, all we ever had to do was listen. मतलब और तभी से हम लोग समझ गए, मतलब जो पोइट है वो लास्ट में कहता है कि तभी से हम लोग समझ गए हैं कि किसी की हिस्ट्री को जानने के लिए, ओके, मतलब किसी को जानने के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है. हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे है उसका बायोग्राफी, उसकी पूरी डिटेल, उसकी लाइफ स्टाइल. ओके, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी बायोग्राफी जानने की ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में जानने के लिए. सिर्फ तुम्हें क्या करना है, बेथोवेन को जानने के लिए उसे सुनना है. ओके, कहना चाह रहे हैं कि बेथोवेन को जानने के लिए उसका लाइफ स्टाइल मत पढ़ो, उसे जानने के लिए सिर्फ उसे सुनो, क्योंकि जब तक तुम नहीं सुनोगे तब तक तुम बेथोवेन को नहीं जान सकते. एंड हेयर योर पोम एंड्स. प्लीज़ एक बार इसे पढ़िएगा, फिर आप दोबारा अपने आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पोम है. ओके, और थोड़ी सी ट्रिकी है, ज़्यादा मतलब इजी नहीं है, थोड़ी ट्रिकी है. सो आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी. ओके, सो यहाँ पे द हिस्ट्री मीन्स द लाइफ स्टाइल ऑफ लाइक दिस बेथोवेन. तो कहते हैं बेथोवेन को समझने के लिए आपको उसकी बायोग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको उसका लाइफस्टाइल नहीं जानना है, सिर्फ क्या करना है, उसे सुनना है. आप तुरंत बेथोवेन को समझ जाएंगे. सो गाइस, आई होप आपको समझ आई होगी. ये पोम बहुत ही प्यारी पोम थी, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसे अपने आप पढ़िए ध्यान से, और जहाँ भी समझ नहीं आ रहा है वहाँ मुझे सुनिए. ओके, so that's it guys, have a good day, bye guys, and if you love this video then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you guys, bye guys.